امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے آرمی چیف جنرل سید آصم منیر کو مرد آہن قرار دے دیا۔ پاک بھارت کشیدگی کے تناظر میں امریکی اخبار نے آرمی چیف کے قائدانہ کردار کی اہمیت کو تسلیم کیا۔ اخبار نے لکھا، آرمی چیف نے پاکستان کے واضح موقف کو تشکیل دیا اور دو ٹوک کہا، بھارت کی مہم جوئی کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ ان کا خطاب کسی بھی بھارتی حملے کا جواب دینے کے عزم کا ادا ہے۔ جنرل آصم منیر نے سیاسی معاشی مشکلات میں گھری پاکستانی قوم کو متحد کر دیا۔ بھارت کی آبی جارحیت سینتاس معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے دریائے چناب کا پانی روک لیا۔ ہیڈ مرالہ کے مقام پر پانی کا بہاؤ صرف 5300 کیوسک رہ گیا۔ گزشتہ ہفتے دریائے چناب میں پانی کا بہاؤ 40,000 کیوسک تھا۔ ذرائع کے مطابق بھارت بگلیہار ڈیم میں پانی جمع کر رہا ہے۔ چناب میں پانی کے بہاؤ میں مزید کمی متوقع ہے۔ پاکستان کا فتح میزائل کا کامیاب تجربہ۔ جدید نیویگیشن سسٹم سے لیس میزائل زمین سے زمین پر ہدف کو 120 کلومیٹر دور تک کامیابی سے نشانہ بنا سکتا ہے۔ ISPR کا کہنا ہے، میزائل کے آپریشنل اور ٹیکنیکل امور سمیت نیویگیشن سسٹم کا مشاہدہ کیا گیا۔ میزائل کے کامیاب تجربے پر صدر آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف کی چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف اور آرمی چیف کو مبارکباد۔ وزیر اعظم نے کہا، تربیتی لانچ کی کامیابی سے واضح ہو گیا، پاکستان کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ وزیر اعظم کا پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں، ملکی دفاع کے لیے بھرپور تیاری پر اطمینان کا اظہار۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی دفتر خارجہ آمد۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے عباس عراقچی کا استقبال کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ گزشتہ رات اسلام آباد پہنچے تھے۔ پاکستان پہل نہیں کرے گا، کسی بھی جارحیت کا قومی عزم اور طاقت کے ساتھ جواب دیں گے۔ بھارت خطے کو جنگ کی طرف دھکیلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں، خبر تھی بھارت 29 اور 30 اپریل کی رات کو حملہ کرے گا۔ ہماری افواج نے بھارت کے حملے کو ناکام بنا دیا۔ بھارتی طیارے سری نگر میں لینڈ کر گئے۔ پہلگام ڈرامے کا مقصد بھارت میں جاری تحریکوں سے توجہ ہٹانا ہے۔ عالمی برادری خطے کی صورتحال کا فوری نوٹس لے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس آج ہوگا۔ صدر سلامتی کونسل کا کہنا ہے، خطے میں بڑھتی کشیدگی کے باعث تشویش ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا، جارحانہ بھارتی اقدامات، اشتعال انگیزی اور بیانات سے آگاہ کیا جائے گا۔ خصوصی طور پر سینتاس معاہدے کو معطل کرنے کے بھارتی غیر قانونی اقدامات کو بھی سلامتی کونسل کے سامنے رکھا جائے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں، اجلاس میں جعفر ایکسپریس حملے کے ثبوت بھی پیش کریں گے۔ بھارت کی جانب سے اب بھی جنگ کا خطرہ موجود ہے۔ رافیل طیارے اڑانے کے لیے دل گردہ بھی تو چاہیے۔ بھارتی پائلٹ تو چائے پی کر چلے جاتے ہیں۔ پاک بھارت کشیدگی کا حل پہلگام واقعے کی آزادانہ تحقیقات میں ہی ہے۔ بھارتی اقدامات سے علاقائی امن و استحکام کو خطرہ لاحق ہے۔ صدر آصف علی زرداری کی پاکستان میں چین کے سفیر سے ملاقات میں گفتگو۔ دو طرفہ تعلقات اور پہلگام واقعے کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان صورتحال پر تبادلہ خیال۔ صدر زرداری کا بھارتی حکومت کے غیر ذمہ دارانہ اور جارحانہ بیانات پر اظہار تشویش۔ مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دینے اور چینی حکومت کی مسلسل حمایت کو سراہا۔ چینی سفیر نے کہا، دونوں ممالک آہنی برادر ہیں، ہمیشہ مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا۔ چین جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کی مشترکہ خواہش کے حصول کے لیے ہمیشہ پاکستان کی حمایت کرے گا۔ خطے میں امن کے لیے سفارتی کوشش۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سرکاری دورے پر اسلام آباد آمد۔ ایڈیشنل سیکرٹری ویسٹ ایشیا سعید اسد گیلانی نے ایرانی وزیر خارجہ کا استقبال کیا۔ ترجمان وزارت خارجہ کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی پاکستانی قیادت سے اہم ملاقاتیں کریں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ کا بھارت کا دورہ بھی اسی ہفتے شیڈول ہے۔ پاکستان امن چاہتا ہے، لیکن بھارت نے جارحیت کی تو افواج پاکستان کا جواب منہ توڑ ہوگا۔ ترجمان پاک افواج کی سیاسی قائدین کو ان کیمرہ بریفنگ۔ وفاقی وزیر اطلاعات اور DG ISPR کا قومی سلامتی پر سیاسی رہنماؤں کے ساتھ سیشن۔ اجلاس میں پہلگام واقعے اور بھارتی جارحیت کے خلاف قومی اسمبلی میں قرارداد لانے کا فیصلہ کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق متفقہ قرارداد آج شام ہونے والے قومی اسمبلی کے اجلاس میں لائی جائے گی۔ بھارت کے پرامن پاکستان کے خلاف اشتعال انگیز اقدامات جاری۔ بھارت کی جانب سے پاکستانی پوسٹوں پر بلا اشتعال فائرنگ کی گئی۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے، بھارت نے آج رات متعدد مقامات پر پوسٹوں پر فائرنگ کی۔ پاک فوج نے بھارتی فوج کی بلا اشتعال فائرنگ کا منہ توڑ جواب دیا۔ بھارت نے لائن آف کنٹرول پر نکیال، کوئرٹا، شاردا، کیل سیکٹرز میں پوسٹوں پر فائرنگ کی۔ وزیر اطلاعات عطا طاہر کا بین الاقوامی اور مقامی میڈیا کے ہمراہ لائن آف کنٹرول کا دورہ۔ بھارتی پروپیگنڈے کو بے نقاب کرنے کے لیے زمینی حقائق میڈیا کے سامنے پیش کر دیے۔ کہا، جو مقامات بھارت خیالی دہشت گرد کیمپس قرار دیتا رہا وہ عام شہری آبادی کے علاقے ہیں۔
पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत है जो न सिर्फ इलाकाई और आलमी अमन के लिए भी पुरअज़्म है। भारत अपनी दाखिली नाकामियों को छुपाने के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल पर प्रोपेगेंडा करता है। आलमी मीडिया ने अपनी आंखों से असल हकीकत देख ली। CNN के अवार्ड याफ्ता एडिटर निक रॉबर्टसन का भी LOC का दौरा। गांव सरजीवार में भारतीय फौज के फेक इनकाउंटर में शहीद मोहम्मद फारूक और मोहम्मद दीन के अहल खाना से मुलाकात की। सोगवारान की बैनुल अक़वामी मीडिया के जरिए इंसाफ की अपील। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और कौमी मफाद का हर हाल में तहफ़्फ़ुज़ करेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारूफ से गुफ्तगू। रूसी वज़ीर ख़ारजा का खित्ते की सूरत हाल पर इज़हार तशवीश। मसाइल के हल के लिए सफारतकारी की अहमियत पर जोर दिया। इससे पहले सरगई लारूफ ने भारतीय हम मनसब पर जोर दिया, कशीदगी बढ़ाने के बजाय बातचीत को तरजीह दे। भारत में दहशतगर्दी, जराइम और रेप के बढ़ते वाक़यात। अमरीका ने अपने शहरियों को भारत का सफर न करने की हिदायत कर दी। महकमा खारजा ने बताया भारतीय सियासी मकामात पर पुरतशद्दुद जराइम और जिनसी हमलों की रिपोर्ट्स हैं। पाकिस्तान भारत सरहदों पर मुसल्लह तसादुम के खतरात हैं। सिक्योरिटी खदशात पर पाकिस्तानी हुकूमत ने अमरीकी सफारतकारों की नकलो हरकत महदूद कर दी। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के खतरात का खदशा जाहिर किया गया। बरतानिया का भी अपने शहरियों के लिए पाकिस्तान और भारत से मुतालिक सफरी इंतबाह जारी। बरतानवी हुकूमत की अपने शहरियों को पाकिस्तान और भारत का सफर न करने की हिदायत। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर भारतीय खवातीन के मोदी हुकूमत से सख्त सवालात। कहती हैं बिहार में इंतखाबात होने वाले हैं, इसलिए पहलगाम हमले की हकीकत छुपाई जा रही है। मोदी तो बोलता था फौज इतनी ताकतवर है परिंदा पर नहीं मार सकता, फिर दहशतगर्द कैसे आ गए? टीवी शो में शरीक भारतीय खातून ने पूछा लोगों को कत्ल करने के बाद दहशतगर्द कैसे फरार हुए? सिक्योरिटी खदशात के बावजूद मौसर इकदाम क्यों न किए गए? भारतीय सिख ने मेजर गौरव आर्या की असलियत खोल दी। बोले पंजाब की 2 बटालियन की नफरी गुजरात बॉर्डर पर खड़ी कर दो तो गौरव आर्या जैसे लोग अपनी धोती छोड़कर भाग जाएंगे। जंग के हालात हो तो गौरव आर्या जैसे लोग साबुन खा लेते हैं, इनकी तबीयत खराब हो जाती है। इसलिए जब भी बॉर्डर पर लड़ाई छिड़ी वहां सिखों ने मुकाबला किया। जिना हाउस का गेट फलांग कर गए थे या अंदर से किसी ने खोला? जिना हाउस का गेट अंदर से किसी ने खोला तो मिली भगत का जुर्म बनेगा। जस्टिस मुसरत हिलाली के सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने पूछा क्या 9 मई को जो हुआ वो जुर्म की नीयत से हुआ? अटॉर्नी जनरल ने कहा 9 मई को जो हुआ वो जुर्म ही था, तमाम वाकयात इत्तफाकिया नहीं थे। रात 9 बजे तक पूरी कोर गैर फाल हो चुकी थी। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने पूछा क्या फौज ने किसी अफसर के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई भी की? अटॉर्नी जनरल ने बताया 3 आला अफसरान को बगैर पेंशन और मराआत रिटायर किया गया। रिटायर होने वालों में 1 लेफ्टिनेंट जनरल, ब्रिगेडियर और लेफ्टिनेंट कर्नल शामिल हैं। 14 अफसरान की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार किया गया। इसका मतलब उन्हें मजीद तरक्की नहीं मिल सकती। अटॉर्नी जनरल के दलाइल मुकम्मल। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया जो इसी हफ्ते सुनाया जाएगा। सिंध में सेनेट की खाली नशस्त पर इंतखाब कल होगा। सिंध असेंबली के ऐवान को पोलिंग स्टेशन करार दे दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी सामान की तरसील कर दी। पीपल्स पार्टी के वकार मेहदी और MQM की निघत मिर्जा में मुकाबला होगा। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी ने बॉयकॉट का ऐलान कर रखा है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी से खालिद मकबूल की क़यादत में MQM के अरकान असम्बली की मुलाकात। अपने अपने हलकों के अवामी मसाइल और मुख्तलिफ तजावीज़ से आगाह किया। गवर्नर ने मसाइल के हल में हायल रुकावटों को दूर करने की यकीन दहानी कराई। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा सूबाई हुकूमत से उम्मीद नहीं है, अरकान असम्बली अपनी मदद आपके तहत लोगों की मदद करें। MQM सेंट्रल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के इजलास से गुफ्तगू में खालिद मकबूल ने कहा 22 अगस्त के बाद सियासी कम फहमी का शिकार चंद लोगों ने तासुर लिया। MQM खत्म हो गई, साबित किया हमारा वजूद हमारे हुकूक की जंग से जुड़ा है। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर कतर पहुंच गए। मोहसिन नकवी की कतरी वजीर मुमलिकत बराए दाखिला शेख अब्दुल अजीज बिन फैसल बिन मोहम्मद अल सानी से मुलाकात। कतर के वजीर मुमलिकत बराए दाखिला ने कहा आपका दौरा 2 तरफा ताल्लुकात के फरोग के लिए अहम साबित होगा। मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तान कतर के साथ ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। स्टेट बैंक अगले 1.5 माह के लिए नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। शरह सूद में 50 से 100 बेसिस पॉइंट्स कमी का ऐलान मुतवक्के। बैंकों के लिए मौजूदा शरह सूद 12% है। रवा माली साल स्टेट बैंक शरह सूद में अब तक 10% कमी कर चुका। बैनुल अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमत मजीद 3.33% गिर गई।
लंदन ब्रेंट की कीमत $2.04 कमी से $59.25 फी बैरल, जबकि अमरीकी वेस्ट टेक्सास की कीमत $2.10 कमी से $56.19 फी बैरल पर आ गई। रॉयटर्स के मुताबिक ओपेक प्लस ममालिक का मुसलसल दूसरे महीने तेल की पैदावार में इजाफे पर इत्तफाक। जून में खाम तेल की पैदावार में यौमिया 4,11,000 बैरल का इजाफा किया जाएगा। मगरबी हवाओं का सिस्टम सिंध पर असरअंदाज। कराची में आज गर्द चमक के साथ बारिश की पेशगोई। रात गए शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गर्द आलूद हवाएं चली, कुछ इलाकों में बूंदाबांदी भी हुई। खैरपुर और शिकारपुर समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी मूसलाधार बारिश और यालाबारी। कई इलाकों में बिजली मुअत्तल। मीरपुर खास डिवीजन में तेज हवाओं की वजह से आम के बागात को नुकसान पहुंचा। दादू में गर्द गुबार के तूफान से मुतादिद दरख्त और बिजली के पोल उखड़ गए। नवाबशाह में घर की दीवार गिरने से मलबे तले दबकर 2 बच्चे जाँ बहक, खातून जख्मी हुई। कराची में आला सानवी तालीमी बोर्ड के तहत इंटर के सालाना इम्तिहानात का आगाज। 1,26,500 तलबा के लिए 182 इम्तिहानी मराकज कायम। व्हाट्सएप पर पर्चा अपलोड करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। नकल में मुलव्विस तालिब इल्म को 3 साल के लिए नाअहल करार दिया जाएगा। चेयरमैन इंटरपोल गुलाम हुसैन कहते हैं, नकल माफिया और व्हाट्सएप ग्रुप के खिलाफ FIA साइबर क्राइम की खिदमात हासिल हैं। PSL 10 के सनसनीखेज मैच में कराची किंग्स ने लाहौर कलंदर्स को 4 विकेट से हरा दिया। किंग्स ने 168 रन का हदफ 3 गेंद पहले हासिल किया। इरफान खान नयाजी के 21 गेंदों पर मैच विनिंग 48 रन। बारिश की वजह से कराची किंग्स को डकवर्थ लुइस मेथड के तहत 168 रन का हदफ मिला। इरफान खान कहते हैं, खुद पर यकीन था मैच जितवा सकता हूं। ये मेरी बेहतरीन इनिंग्स में से एक थी। ऐसे ही खेल की सलाहियत रखता हूं, लेकिन कुछ वक्त से परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। बुरे वक्त में कराची की मैनेजमेंट ने भरपूर सपोर्ट किया। इरफान खान न्यासी ने नाकाबिल यकीन इनिंग्स के लिए जितनी तारीफ की जाए कम है। कराची किंग्स के कप्तान डेविड वार्नर का कहना था, बारिश के बाद 44 रन देकर 7 विकेटें हासिल करना लाजवाब परफॉर्मेंस थी। लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन अफरीदी ने कहा, हार जीत खेल का हिस्सा है। कराची की टीम अच्छा खेली, इसलिए कामयाब रही। गलतियों से सीखेंगे और अगले मैचों में बेहतर परफॉर्म करेंगे। PSL का बढ़ाए जोश। क्रिकेट का मकबूल तरीन प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश। साबिक स्टार क्रिकेटर्स बासित अली और कामरान अकमल के जानदार तज्जिए। बासित अली ने कहा, बारिश की वजह से कराची किंग्स को नुकसान हुआ। लाहौर के 6 ओवर्स का पावर प्ले मिला, कराची को 5 ओवर्स का पावर प्ले मिला। कामरान अकमल ने कहा, कराची को टॉस जीतकर बैटिंग करनी चाहिए थी। मेहमान बने गुलकार साहिर अली बग्गा। पाकिस्तान जिंदाबाद मिली नगमा गाकर लहू गरमाया। बताया, अभिनंदन के पकड़े जाने पर पाकिस्तान जिंदाबाद नगमा गाया था। भारत की मौजूदा बेवकूफ़ी पर एक और तराना बना रहे हैं। दुनिया को पैगाम है कि हम पुरअमन और मोहब्बत करने वाले लोग हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद है और हमेशा जिंदाबाद रहेगा। आदि और मुस्तफा चौधरी ने मुस्कुराहटें बिखेरी। साबिक SSP मलीर राव अनवार और दीगर की बरियत के खिलाफ अपीलें काबिल समाअत होने पर एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल से राय तलब। वकील ने बताया, नकीबुल्लाह कत्ल केस में बरियत के खिलाफ अपील दायर की है। जस्टिस उमर सियाल ने निवाक्स दी है, किसी के साथ ज्यादती नहीं करेंगे। जो कुछ फाइल में है हम उसको देखकर ही फैसला करेंगे। कराची में ट्रैफिक हादसात में मजीद 2 अफराद जान बहक। गुलबाई के करीब डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर से 10 साल का बच्चा जान बहक, वालिदैन जख्मी। डंपर ड्राइवर फरार। मुश्तइल शहरियों ने डंपर को आग लगा दी। स्टार गेट के करीब बस की जद में आकर मोटरसाइकिल सवार जान से गया। कुरम वाकयात में मुलव्विस 125 मुल्जिमान को हिरासत में ले लिया। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फिकार हमीद कहते हैं, उलमाए कराम की टारगेट किलिंग के वाकयात में एक गिरोह मुलव्विस है। मोबाइल नंबर्स मिलने पर कुछ लोगों तक पहुंच चुके हैं। रवा माली साल के दौरान खैबर पख्तूनख्वा रेवेन्यू अथॉरिटी की कारकर्दगी शानदार रही। 10 माह में 42 अरब रुपए के महासिल जमा किए, जो गुज़िश्ता साल से 40% जायद है। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम कहते हैं, जुलाई से अप्रैल तक सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज की मद में 32 अरब रुपए जमा किए गए। मरी में तेंदवा आबादी में घुसाया। नवाही इलाके देवल में हमला करके खातून को जख्मी कर दिया। तेंदवा आबादी में आने पर लोगों में खौफ व हिरास फैल गया। गजा पर इसराइल के हमले जारी, मजीद 24 फलस्तीनी शहीद। इमदादी सामान की तरसील पर पाबंदी के बायस गजा में 3 लाख से जायद बच्चे शदीद गजाई किल्लत का शिकार। बरतानिया, बेल्जियम और जर्मनी में निहत्ते मजलूम फलस्तीनियों पर इसराइली मजालिम के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे। लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तुर्क बहरी जहाज खैर सगाली दौरे पर कराची पहुंच गया। तुर्क बहरी जहाज बियोकदा का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। ISPR का कहना है, तुर्क बहरी जहाज की आमद पाक तुर्क लाजवाल दोस्ती और भाईचारे की अलामत है।
दौरे में पाक तुर्क बहरी ताउन पेशा वराना उमूर पर तबादला ख्याल होगा। तीसरी बार अमेरिकी सदर बनने का कोई इरादा नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिकी मीडिया को इंटरव्यू, कहा बहुत से लोग मुझे तीसरी बार सदर देखना चाहते हैं लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। अमेरिकी आइन के मुताबिक भी कोई शख्स 3 बार अमेरिकी सदर नहीं बन सकता। और ARY फिल्म सलमान इकबाल फिल्म और 6 सिग्मा प्लस की मुश्तरका पेशकश। फिल्म लव गुरु का ट्रेलर जारी। रोमांटिक कॉमेडी ईद उल अजहा पर बड़ी स्क्रीन पर धूम मचाएगी। हुमायूं सईद, माहिरा खान, अहमद अली भट्ट समेत स्टार कास्ट पर मबनी फिल्म का सबको इंतजार। फिल्म का ट्रेलर कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स के मैच के दौरान रिलीज किया गया।